देखो रजत, क्वेश्चन नंबर 13, capital gains. Professor Kashinath had purchased two plots, one on 1st March 2003 for 24,800 and another on 1st March 2024 for rupees 22,300. He sold the plot of 1st March 2003 for rupees 2,10,000 and of 1st March 2024 for rupees 80,000 on 1st April 24. 1st April 24 ਨੂੰ दोनों करते. He also sold his jewelry for rupees 2,40,000 on the same day, 1st April 24, which he had purchased for 52,000 on 1st August 2004. He invested the full consideration amount from the sale of all these assets in the acquisition of new residential house on the same day. Compute taxable capital gains assuming that he did not own any residential house on that date, matlab section 54F recently, and CIIs were given. तो सब तो पहली चीज सेल की कितना प्लॉट 1 से प्लॉट 2, दो प्लॉट सेल कितने. तो राइट, प्लॉट 1 सेल कंसीडरेशन दसोगे, नाला लिख सकते. दसो प्लॉट 1 की सेल कंसीडरेशन 2,10,000. सेलिंग एक्सपेंस है कोई? नील. 2,10,000. selling expenses nil. Net sale consideration 2,10,000. What was the cost? Cost. ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਪਲਾਟ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ 24,800 ਦਾ. ਕਦ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ? 1 ਮਾਰਚ 2003, ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ. लॉन्ग टर्म ਦੀ इंडेक्सिंग करी थी नॉर्मली, बट ਹੁਣ सेकंड कंडीशन भी चेक करनी कि डेट ऑफ सेल की है. बोलो डेट ऑफ सेल 1 अप्रैल 24, इट्स बिफोर 23 जुलाई 24, मींस इंडेक्सिंग होनी या नहीं. यस, सो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 24,800 into 363 divided by 105 divided by 105. 24,800 into 363 divided by 105. The balance is amount is 85,737. What's the capital gain? LTCG, yes or no? 85,737. 1,24,263 rupees. Yes or no? Agree? Now the plot 2. What's the sale consideration for plot 2? 80,000. Okay, sir. Selling expense nil. NSC 80,000. ਹੁਣ ਦੱਸੋ कॉस्ट या इंडेक्स कॉस्ट. चेक करो कितना कॉस्ट सी पहली चीज. कॉस्ट वाज 22,300. व्हेन वाज इट परचेज्ड? 1 मार्च 24 ਨੂੰ परचेज ਕੀਤਾ, 1 अप्रैल 24 ਨੂੰ सेल कर. जस्ट 1 मंथ. शॉर्ट टर्म इंडेक्सिंग नहीं होनी. So what will you write? Minus cost of acquisition. No indexing because it was a short-term capital asset. So what's the short-term capital gain? 57,700. Everyone, yes or no? Yes or no? Next, इस तो इलावा की सेल कितना? Jewelry. What's the sale consideration for jewelry? 2,40,000. When was it purchased? 1 August 2004. Long term back. Long term asset हो गया. Second thing, date of sale same. Before 23rd July 24. Means indexing इतने होगी. Yes or no? So sale consideration is 2,40,000. Selling expense nil.
NSE 2,40,000 minus index cost of acquisition. The cost was 52,000. So indexing करोगे 363 upon 113. 167 044 72956. ठीक है, यस और नो? उन परचेज की कितना? Residential house. He invested the full consideration amount from sale of all these assets in the acquisition of new residential house. So की मिल सकती है? हाउस तो नहीं सेल किया कोई, प्लॉट सेल किए एंड ज्वेलरी सेल की थी, मींस रेजिडेंशियल हाउस के बदले रेजिडेंशियल हाउस नहीं है, सेक्शन 54 विल नॉट कम, किया होगा ओनली 54F. यस और नो? सो 54F मिलती करता सेल ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होते लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होया, and you invested the consideration in purchasing the residential house. Yes or no? ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੈਕਿੰਡ ਪਲਾਟ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ? ਨੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਲਾਟ 1 ਐਂਡ ਜੁਐਲਰੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਐਜ਼ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕਸ਼ਨ 54 is given in case of LTCG. LTCG ਕਿੰਨੇ ਆ ਸਾਡੇ? LTCG it's 124,263 plus 72,956. Yes or no? दोनों का टोटल लगाओ। टोटल LTCG इतना आ गया ਤੁਹਾਡਾ। नाउ थिंक वन मोर पॉइंट इंपॉर्टेंट। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚੋਇਸ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੇਸ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਐਸ ਪਰ ਦਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਲਈਏ। ਯੈਸ ਔਰ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਐਸੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਐਸੈਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫੁੱਲ ਅਮਾਊਂਟ ਇਜ਼ ਇਨਵੈਸਟ, ਜਿੰਨੀ ਨੈਟ ਸੇਲ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਉਨਾ ਹੀ ਅਮਾਊਂਟ ਇਨਵੈਸਟਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਾਊਸ ਵਾਜ਼ ਆਫ ਮੋਰ ਵੈਲਿਊ। ਯੈਸ ਔਰ ਆਂਦਾ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ NSC ਔਰ ਅਮਾਊਂਟ ਇਨਵੈਸਟਡ ਸੇਮ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਫੁੱਲ LTCG ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਐਗਰੀ? ਬਟ ਇਸ क्वेश्चन ਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹੀ ਲੱਗਦਾ, क्योंकि क्वेश्चन ने लाइन की लिखी फुल कंसिडरेशन वाज इन्वेस्ट। अच्छा आ नहीं किया कि जितने भी एसेट सेल किए उच्चों मैं 24 लैक्स इन्वेस्ट करते या 10 लैक्स इन्वेस्ट करते, इतना कोई अमाउंट नहीं गिवन। उन्होंने क्या सारा पैसा इन्वेस्ट करता, क्लियरली बोलता। अगर सब दा पूरा NSE इन्वेस्ट करता तो सारे केसेस NSE और अमाउंट इन्वेस्टेड किया होगा बिल्कुल सेम। अगर दोनों सेम आऊगा तो फुल LTCG की हो जाऊगा एग्जाम। ताकि सॉल्व करने की नीड है, रैंकिंग की नीड है, परसेंटेज की नीड है कुछ? नो, as full amount is invested, then full LTCG will be exempted under section 54F. Yes or no? The taxable LTCG कितना होगा? बोलो। nil। and taxable STCG कितना होगा? 57,700। एनी डाउट? ठीक है, अगर ये क्वेश्चन ना करो आप पॉइंट सोचना ही नहीं करी और उत्थे रैंकिंग करके पूरा टेबल से टाइम लगाओगे और वरना नीड कोई आनी नहीं, एंड से जीरो ही आना। ऐसा नो? तो एक लाइन ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਟੇਬਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਚ। ਯੈਸ অর नो?
Illustration 4, one another concept, Raja. Read the question first. Case समझ आए क्या related है समझना. कहते Mr. S Sethi, a non-resident, sent dollars 25,000. How many? $25,000 to India. Marvi, S Sethi sent $25,000 to India on 20th May 2008. उधरों पैसे भेजे किसी ने? On 7th July 2008, a part of this money was utilized to purchase 20,000 shares of XY and Indian company, XY Limited and Indian company at rupees 10 per share. शेयर कितने का मिले? 10 rupees per share. पैसे कितने आए सी? $25,000. On 1st November 2024, these shares were sold at rupees 40 per share. Now you need to calculate the capital gain if capital gain on shares is covered under section 112. Telegraphic transfer rates are as follows. हर दिन डॉलर्स और रुपीस कन्वर्जन ਦੇ रेट्स ਹੁੰਦੇ हर करंसी ਦਾ रेट ਹੁੰਦਾ हर दिन ਬਾਇੰਗ ਰੇਟ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਸੈਲਿੰਗ ਰੇਟ ਅਲੱਗ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 골ਡ ਸੋਚੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਪੇਟੀਐਮ ਐਪ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਪੇਟੀਐਮ ਐਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਅੱਜਕੱਲ 골ਡ ਬਾਏ ਕਰਨ दैट्स सिंपली लॉस मेकिंग बहुत बच्चे कोई भी ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਊ ਕੋਈ ਐਪ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ 골ਡ ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ ਬਟ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸੀ ਟਾਈਮ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਗਰ 골ਡ ਪਰਚੇਸ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ट्रांजेक्शन चार्ज कोई नहीं लगा रहा बट उत्थे भी बाइंग और सैलिंग रेट का डिफरेंस होगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੋ ਹੁਣੀ ਬਾਏ ਕੀਤਾ 5000 ਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 5000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਣਾ ਕੁਝ ਖਰਚਾ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਮਥਿੰਗ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲ ਤੇ ਲਗਾਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋਣਾ 4600 ਸਮ 400 उसी टाइम क्या ये ना जाऊगा गोल्ड पे अगर गोल्ड इंक्रीज होगा तब मतलब इमीडिएटली उस किसी कॉस्ट करके कह लो जबकि ऊपर लिख रहे हैं कि कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट का नहीं है दैट्स ओके दुनिया क्रेज ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਪੇਟੀਐਮ ਚ ਪੈਸੇ पे ਚੱਲ गोल्ड लगा गोल्ड ਦਾ क्रेज बहुत ज्यादा बट सिंपली भी समझो ਤੁਸੀਂ इसी टाइम 5000 ਦੀ परचेज करोगे ड्यू टू द बाइंग एंड सेलिंग रेट डिफरेंस एंड लिटिल सम कॉस्ट ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ 5000 ਦਾ ਖਰੀਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 4600 ਰੁਪਏ ਸੇਲ ਲਈ ਸ਼ੋ ਹੋ मतलब 400 रुपए ऑन 5000 तो 8% का लॉस तो उसी टाइम हो गया बने आर यू गेटिंग दैट तो मींस ਤੁਸੀਂ ਬਾਇੰਗ ਔਰ ਸੈਲਿੰਗ ਰੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਐਪ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੋ ਹੋ ਬਾਇੰਗ ਦਾ ਰੇਟ 골ਡ ਖਰੀਦੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਦੇਵੋਗੇ ਬਟ ਸੇਲ ਕਰਨ ਜਾਓਗੇ ਸਸਤਾ ਲਓਗੇ दैट्स द डिफरेंस बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ डॉलर्स बाइंग रेट ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੈਲਿੰਗ ਰੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੇਟ ਤੇ ठीक है हर टाइम एक्सचेंज ਦੇ अलग-अलग रेट्स ਹੁੰਦੇ नाउ द कंसेप्ट इज कि पैसा आया फॉरेन तो नॉन रेजिडेंट तो रेजिडेंट पर्सन नहीं है ही इज अ नॉन रेजिडेंट पर्सन ने इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਰ ਕਰੰਸੀ ਚ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਪਾਉਂਡ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਡਾਲਰਸ ਐਨੀਥਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਐਸੈਟਸ ਕੋਈ ਗੇਨ ਕਮਾਇਆ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੂਗੀਆਂ ਬਾਇੰਗ ਰੇਟ ਐਂਡ ਸੈਲਿੰਗ ਰੇਟ ਅਗਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੋ ਰੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੰਪਲ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਸ ਕੈਨ ਬੀ ਸੋਲਵਡ ਹੈ ਨਾ ਬਟ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰਸ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਬਟ ਪੈਸੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ डॉलर तो करेंसी एक्सचेंज ਦੇ ਬਾਇੰਗ ਰੇਟ ਸੈਲਿੰਗ ਰੇਟ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆਉਗੇ ਨਾ ਇਸ टॉपिक का नाम चेक करो कि लिखा कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट यू गेटिंग दैट ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਾਰਮੈਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਐਸੈਟ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੋਚੋ ਕੀ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ शेयर्स बाद सेल करते सेल कंसिडरेशन सेम फॉर्मेट सेलिंग एक्सपेंस सेम एनएससी सेम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करोगे एलटीसी आ जाओ बेसिक फॉर्मेट सेम
बट इतने कन्वर्जन रेट्स भी तो काम आने। ये सुनो, कन्वर्जन रेट सोचो, जिस दिन सेल किया किस दिन का रेट लाओगे, डेट ऑफ सेल ब्रैकेट के नाल देखो की लिखा है, डेट ऑफ सेल। बट किस रेट में लाओगे, नीदर यू विल टेक बाइंग रेट नॉट सेलिंग रेट, यू विल टेक एन एवरेज ऑफ दैट। सिंपली इस फॉर्मेट में कर लोगे तो डायरेक्ट टॉपिक हो जाओ। ठीक है, यू विल यूज उन ਇਹਦੇ रीजंस वैलिड है बट वो लेंदी कंसेप्ट ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਫ 5 ਮਾਰਕ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ 112 A ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ, ਸੇਮ ਵੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ 5 ਮਾਰਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਕੈਨ ਇਹ ਔਰ ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਸੋਲਵ। ਡੇਟ ਆਫ ਸੇਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਐਵਰੇਜ ਰੇਟ। ਸੈਲਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ ਵੀ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਸੇਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਡੇਟ ਆਫ ਸੇਲ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਰੇਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਐਨਐਸसी ਆ ਗਿਆ। ਯੈਸ অর नो। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन परचेज किस दिन ਕੀਤਾ ਸੀ, डेट ऑफ एक्विजिशन, उस दिन ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਰੇਟ ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ। डेट ऑफ एक्विजिशन वाले दिन ਉਹਦਾ ਐਵਰੇਜ ਰੇਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ। इसका डाउट। सेल कंसिडरेशन किस दिन मिली, सेल वाले दिन, डेट ऑफ सेल द एवरेज रेट। सेलिंग एक्सपेंस किस दिन पे किया, डेट ऑफ सेल ਉਹਦਾ एवरेज रेट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन ਉਹਦਾ एवरेज रेट। इसका कोई टेंशन आई, सिर्फ एवरेज रेट वर्ड का यूज होया। एलटीसीसी तक आ गए डॉलर्स, इन डॉलर्स। ये सुनो, जब ਤੁਸੀਂ उस पर्सन ਦਾ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डॉलर फाइंड कर लिया, टैक्स ਤਾਂ इंडिया ਚ ਲਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, यूज टू बी टैक्सड इन इंडिया, क्योंकि कैलकुलेशन इंडिया ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਗੇਨ ਵੀ ਤਾਂ ਰੁਪਏ ਚ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਡੇਟ ਆਫ ਸੇਲ ਵਾਲੇ ਬਾਇੰਗ ਰੇਟ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਬਾਇੰਗ ਰੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੀ ਆਇਆ, ਐਵਰੇਜ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਡੇਟ ਆਫ ਸੇਲ ਹੈ ਜਾਂ ਡੇਟ ਆਫ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ एवरेज रेट ले लिया। नॉट अप, ये सुनो वेरी इजी, सिर्फ याद की रखना लास्ट वाला, डेट ऑफ सेल वाले दिन का ही गेन है, बट केड़ा रेट लेना है, बाइंग। ट्राई करिए की करना। सेल कंसिडरेशन किन्ने शेयर सी तुहाडे को, 20,000, किन्ने रेट दे सेल किते, 40 रुपीज। मल्टीप्लाई करो, पहला कैलकुलेटर पिक करो। नॉर्मली अगर तुसी रुपीज से कदे क्वेश्चन करते, योर सेल कंसिडरेशन वुड बी रुपीज 8 लाख। यस और नो, यस और नो। अच्छा हुन ਇਹਦੀ पर सॉल्विंग करो तो पहला एक और चीज दसो, एक बेसिक एग्जांपल सोचो। ए तो सोच के देखो, इतना सीखे होया, पता है चीज, एक डॉलर से ज्यादा रुपीज होते हैं। इस टाइम था 90 के कोल टच कर गया एक्चुअली। मैं 40 क्यों लिया, बिकॉज थोड़ा क्वेश्चन उस यूनिक वैल्यू से कोल। ओके, $1 इज इक्वल टू सपोज 40 रुपीज। ठीक है, अगर तो मैं रुपीज कोई वैल्यू दी, कोई भी वैल्यू रुपीज से देती, हाउ विल यू गो टू डॉलर्स, दिस वे इज एक्चुअली डिवाइड बाय 40। यस और यस और तो ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਲ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਰੁਪੀਸ ਚ ਕਿੰਨੀ ਆਈ, 8 ਲੱਖ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਡਾਲਰਸ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੂਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਐਵਰੇਜ ਰੇਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਡੇਟ ਆਫ ਸੇਲ ਦਾ। ਡੇਟ ਆਫ ਸੇਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, डेट ऑफ सेल नवंबर 24, नवंबर 24 आ गया, आ गया। नवंबर 24 का ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਇੰਗ ਰੇਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੈਲਿੰਗ ਜਾਂ ਐਵਰੇਜ, एवरेज मींस 72.75 81.25 दोनों की एवरेज करो। एवरेज की होंगी, ऐड एंड डिवाइड बाय 2 करके देख, 77 एग्जैक्टली आ गया। 77 का मल्टीप्लाई करना या डिवाइड, यू हैव टू गो टू डॉलर्स, तो डिवाइड करोगे, डिवाइडेड बाय 77, 8 लाख रुपीज का गेन सी, 77 ने डिवाइड किया कितना आ गया, 10,390 कितना आया, 89 पॉइंट समथिंग आया, तो $10,390। यस वन, कितना गिवन अब। सेलिंग एक्सपेंस है कोई क्वेश्चन, नो, नील पाके सेम एनएससी आ जाओगे। दिस इज योर नेट सेल कंसिडरेशन माइनस की लिखा फॉर्मेट, सीओए एच कितने इंडेक्सिंग लिखी ही नहीं, इस फॉर्मेट कितने इंडेक्सिंग लिखी ही नहीं। दैट्स वाई एक और रीजन उन्होंने तो जान के नवंबर 24 कंटिन्यू करता, कुछ भी हो थे फॉर्मेट से की है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, नो इंडेक्सिंग, कंसेप्ट ही नहीं होगा। ओके, की माइनस करना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मैंने दसो कितने शेयर्स परचेज किए सी,
20,000 किस रेट थे? 10 रुपीज, मतलब 2 लाख रुपीज। बट यू वांट द वैल्यू इन डॉलर्स। डॉलर से जानने की करना, डेट ऑफ एक्विजिशन वाले बाइंग रेट में एवरेज रेट में यूज करना। तो डेट ऑफ एक्विजिशन वाज 7 जुलाई। ਉਹਦੇ बाइंग रेट लेना सेलिंग या एवरेज? डेट ऑफ एक्विजिशन था पहला, एवरेज रेट बाई क्लास एलटीसीजी। तो एवरेज के लिए 46.05 डिवाइड या मल्टीप्लाई? डिवाइड। 2 लाख डिवाइडेड बाय 46.05, 4343.10 डॉलर्स आ गए। एग्री यस और नो? तो दिस इज योर एलटीसीजी इन डॉलर्स। कोई दिक्कत है तो? दिस इज योर एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन डॉलर्स। Now you have to convert that in rupees. Now you will multiply with the date of sale, the buying rate. Date of sale, the buying rate कितना है? 72.75. So multiply this gain with 72.75. You got the LTCG in rupees. Yes or no? You got the LTCG in rupees. Everyone, yes or no? Clear? Sure? Any doubt? करो चेक करो जल्दी। नीचे वाले क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेक करो। मिस्टर पी कुमार, नॉन रेजिडेंट, सेंट डॉलर्स 1,80,000 टू इंडिया on 1st July 2006. On 1st November 2006, part of this money was utilized to purchase 15,000 shares of A Limited, an Indian company, at rupees 400 per share. 15th March 2025, these shares were sold at 810 per share. Capital gain find करो if capital gain is covered under section 112. रेट्स गिवन है दोनों 46.40, 47.20, 46.80, 47.60 एंड 80.20 एंड 82.60। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਡੇਟਸ ਗਿਵਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸੈਲ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਕਿਹੜੇ ਡੇਟਸ ਹੈ ਬਾਇੰਗ ਔਰ ਸੈਲਿੰਗ? ਦੱਸੋ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਡੇਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਦਿਸ ਵਨ। एंड डेट ऑफ सेल इज दिस। नाल की चाहिए एवरेज रेट्स। एवरेज डेट ऑफ सेल दी करके रखो कितनी है? इट्स 81.40। यस और नो? एवरेज। एंड डेट ऑफ एक्विजिशन दी एवरेज? चेक करो, इतना ही आया 47.20 एवरेज है। ठीक है, तीजा रेट केड़ा चाहिए? दिस वन, डेट ऑफ सेल दा बाइंग रेट। बस तीन रेट्स चाहिए ना। चेक योर आंसर। इस क्वेश्चन का ਤੁਹਾਡੇ को की आंसर आया राजा? इना आ गया समथिंग है ना। ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਬਹੁਤ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਵੀ ਕੀਤਾ। लेट्स सपोज ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੇ ਸੁਣੇ ਰਾਜਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਸਹੀ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਏ। ਜਾਨ ਵੀ ਐਸਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਖੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚ ਰਿਕਾਲ ਕਰਨਾ कि अप्रोक्सीमेट मेरा आंसर ठीक है या गलत है, बिकॉज सॉल्विंग का पर राउंड ऑफ भी किया, बट मैं पेपर च बैठे एक बार दोबारा रीचेक करना चाहता। की करोगे? पहली चीज किन्ने दी सेल कंसिडरेशन, किन्ने शेयर्स? 15,000, सेल रेट 810। ਹੁਣ ਇੱਥੇ डिवाइड बाय रेट करते कि मल्टीप्लाई? डिवाइड विद एवरेज रेट ऑफ द डेट ऑफ सेल। कितना फाइंड किया? 81.40। डिवाइड दिस बाय 81.4, नाल ही मैं एवरेज पा एम प्लस कर ले। मेमोरीज मेरा सेल कंसिडरेशन रिकॉर्ड हो इन डॉलर्स। ठीक है, ਹੁਣ अगली कैलकुलेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कितने शेयर्स? 15,000 इनटू व्हाट वाज द रेट? 400। जितना अमाउंट आया उन्हें डिवाइड करना विद 47.20। डिवाइड बाय 47.20 में एम माइनस पा लिया। कितने पा लिया? एम माइनस। हो गया। सेल कैंसिलेशन भी डॉलर्स आ गई, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी आ गई। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟ ਆਂਸਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ एमआरसी कर दो। आ मेरा आया LTCG 22,144 पॉइंट समथिंग। ये आ गया डॉलर्स। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ करना विद द रेट। रेट केड़ा लेना?
रेट ऑफ सेल द बाइंग रेट मतलब इंटू 80.2 तो 1775969 तो कोई ज्यादा फर्क पया दोस्तों? नो, जस्ट 21 रुपीज। दैट्स ओके। वेरीफाई तो हो गया ना जल्दी। वैसे 2 मिनट रुकना जरूरी है ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ। तो कहते दिस प्रोवाइजो ਇਹਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 48 प्रोवाइजो 1 दिस प्रोवाइजो इज एप्लीकेबल टू नॉन रेजिडेंट्स ओनली। पहली चीज ਆਪਾਂ ਇਹ डिस्कस ਕੀਤੀ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ एप्लीकेबल है टू नॉन रेजिडेंट्स। The non-resident must have acquired shares or debentures of Indian companies using foreign currency। shares debentures परचेज कर ले जानवी रुक जाओ बच्चा सुन लो। नॉन रेजिडेंट ने इंडियन कंपनी के शेयर्स डिबेंचर्स परचेज किए होने चाहिए यूजिंग फॉरेन करेंसी में जो इस पूरे क्वेश्चन किया सब होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट सच नॉन रेजिडेंट वांटिंग टू ट्रांसफर सच शेयर्स विल फॉलो द फॉलोइंग कंसीडरेशंस एंड कंडीशंस। उन्होंने की करना पड़ेगा। फर्स्ट द एसेट में बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ਅਸੀਂ ਕਰੀ हमने ਇੱਥੇ ਆ ਡੇਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਕਦ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸੇਲ ਗੈਪ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਹੈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਹੈ ਆਹੀ ਰੂਲ ਰਹੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੈਪ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੁਝ नथिंग एट ऑल। इट मे बी लॉन्ग टर्म इट मे बी शॉर्ट टर्म कोई कैलकुलेशन भी सेम है। नेक्स्ट द कैपिटल गेन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ सच एसेट शैल बी कंप्यूटेड इन द फॉलोइंग मैनर। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਕਰੰਸੀ ਇਨ ਵਿਚ ਦ ਸ਼ੇਅਰਸ वर एक्वायर्ड। शेयर्स ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ ਡਾਲਰਸ ਉਸੇ ਕਰੰਸੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਡਾਲਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਲ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਲਾਈਕ 8 ਲੱਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਐਟ ਐਵਰੇਜ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਔਨ ਦ ਡੇਟ ਆਫ ट्रांसफर। थ्योरी बच्चा कहता मैं थ्योरी लिखनी नहीं आती ਤੁਸੀਂ जिस बच्चे ने मेरे को फॉर्मेट सीख लिया उन्होंने कोई दिक्कत लगूगी लिखने वही फॉर्मेट इतने लिख देना बस थ्योरी आ जाए भी यार ओके। सेक्शन याद रख लियो बस कि ਇਹਦਾ है सेक्शन 48 प्रोवाइजो 1 और पूरी लाइन में याद रख लियो ठीक है। थर्ड पॉइंट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ਇੱਥੇ कोई इंडेक्सिंग नहीं पहली है ना। इट इज कन्वर्टेड इनटू फॉरेन करेंसी एट एवरेज एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन अगेन एवरेज रेट। एक्सपेंडिचर इनकर्ड मतलब सेल एक्सपेंसेस on the sale is converted into foreign currency at average exchange rate on the date of again transfer out of the sale consideration in foreign currency as per second point above। की माइनस करोगे थर्ड वाला कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में माइनस करोगे फोर्थ वाला एक्सपेंसेस में माइनस कर दो। थर्ड को क्या आ गया एलटीसीजी आ गया इन फॉरेन करेंसी कलर डॉलर्स नहीं कहने की जरूरत फॉरेन करेंसी कहने एनी वन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कोई भी फॉरेन करेंसी है दैट्स ओके। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज नॉट टू बी इंडेक्स्ड अंडर सेक्शन 48 ये भी चीज डिस्कस कर रहे हैं। बैलेंस अमाउंट इज द कैपिटल गेन विच इज उन्होंने वापस उनकी करना reconverted into Indian currency at the buying rate on the date of transfer। Now what's the average exchange rate? It is the average of telegraphic transfer buying rate and telegraphic transfer selling rate of exchange adopted by the State Bank of India for purchasing or selling such currency through telegraphic transfer। की थ्योरी भी आ जाए 5 मार्क्स कोई दिक्कत है उसे विद प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकते इज इट ओके। बट अगर मैं कह देता कि चलो जाओ खुद पढ़ लियो यू नो द आंसर ओके बाय बाय।